Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of MAHCET MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are planning to prepare for MBA CET 2021 exam, because in this video, I'm going to discuss about the 6 most important topics for CET. Guys, these topics are going to be extremely important because you can fetch 30 marks in 10 minutes. And I know that many students are already aware of the topics, but the thing is you have to become expert in these topics. Okay, so you have to master these topics. I've seen students who give 10 to 12 minutes to puzzles. So instead of solving heavy puzzles, just focus on these independent topics. Okay. So guys, before moving further, I would recommend each one of you to like the video, because there are many students who are preparing for CET. Also subscribe the channel, because we are daily making videos, be it a strategy based video, be it a content based video, or be it a notification based video. Chalo guys, let's start without wasting more time. Guys, just join our Telegram group, because you will get the updates regarding CET. Also follow our Insta page, because we are daily posting vocabulary words as well as current affairs. So guys, first topic that we have is quadratic inequality. Quadratic inequality, you all know that quadratic inequality is very easy. I have also made a video on this. You can solve a quadratic question in 5 to 6 seconds. Okay, you can watch that video. So 5 questions can easily be solved in you can say 100 seconds. So 10 questions if you are solving, if you are giving 10 minutes to 30 questions, okay, so it means basically how much time you are giving. You are giving 20 seconds per question, I'm assuming. Okay, so 20 seconds में आराम से हो जाएगा. ठीक है, so quality quantity को अच्छे से PhD कर लो guys, बहुत important है. ठीक है, next we have coded inequality. Coded inequality plays a very important role in CET. Coded inequality has basically two types. एक सिंपल वाला coded inequality होता है जहाँ पे आपको डायरेक्टली दिया रहेगा ग्रेटर देन स्मॉलर देन, और एक आपको सिंबल्स की फॉर्म में दिया रहेगा. तो दोनों आपको मास्टर करना है अच्छे से. ठीक है, दोनों टाइप के आपको मास्टर करना है, बिकॉज देयर इज मोर प्रोबेबिलिटी कि सिंबल वाला आएगा. ठीक है, डायरेक्टली वाला नहीं आता है. ठीक है, सिंबल वाला ज्यादा आता है. ठीक है, तो ये दूसरा आपका हो गया कोडेड इनइक्वालिटी. इसको आपको गाइस यू कैन रिफर द यूट्यूब वीडियोस. आप लोग कोचिंग लिए वहां के वीडियोस देखो. आपको कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बट यू हैव टू प्रैक्टिस. इंपॉर्टेंट है, ट्रिक देखो, शॉर्टकट देखो. ठीक है, शॉर्टकट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड सबके शॉर्टकट मिलेंगे आपको. देन वी हैव नंबर सीरीज. फॉर नंबर सीरीज, check out the YouTube channels, go through the as many patterns as possible, so that जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये है कि आपको क्लिक मिलेगा. बिकॉज नंबर सीरीज थोड़ा सा लॉजिकल होता है, ठीक है, बिकॉज में आपको पैटर्न होना पड़ता है, तो मे भी थोड़ा एक्यूरेसी डाउन हो जाए, बट इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस. सो इफ यू आर रेडी टू प्रैक्टिस 100-150 क्वेश्चंस on number series, then you can master this topic as well. Then we have approximations. Approximations is more about the speed maths. तो आपने अगर शॉर्टकट्स देखे हैं, हमने अप्रोक्सीमेशन से वीडियो बनाया था ऑलरेडी, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेशंस को अच्छे से कर लो गाइस. 5 क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के, आपका आराम से निकल जाएगा. ठीक है, एंड 20 सेकंड्स पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो बहुत इजी है. 20 सेकंड्स काफी होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए. ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशंस कर लो. देन वी हैव सैलोजिज्म. सैलोजिज्म को गाइस अच्छे से कर लो. सैलोजिज्म के 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, आराम से आते हैं. एंड सैलोजिज्म इज नॉट दैट टफ नहीं है. उसके भी अलग अलग रूल्स होते हैं. आपका वेन डायग्राम वाला जो होता है वो सैलोजिज्म से करते हो, बाकी और भी रूल्स होते हैं. एक 150 रूल होता है. ठीक है, वो नेट में देखना क्या होता है वो. ठीक है, उससे भी आपका शॉर्टकट तरह से निकल जाता है. एंड सैलोजिज्म में आप थोड़े से ट्रिकी टाइप के करो. पॉसिबिलिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखो, बिकॉज उसमें आप ट्रैक कर जाओगे, मतलब उसमें आप ट्रैप हो जाओगे बेसिकली. ठीक है, क्योंकि आप इजी वाले तो कर लोगे, बट जनरली आप आइदर और या फिर पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चंस में यू मे गेट ट्रैप्ड. तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस. गाइस, ये 5 टॉपिक हमें हो गए. 6 हमारा है क्वांटिटी कंपैरिजन. 5 क्वेश्चंस इसके भी आते हैं. क्वांटिटी कंपैरिजन में आपको 2 क्वांटिटीज होती हैं. यू हैव टू चेक आउट वेदर कौन सी क्वांटिटी बड़ी है. तो इसमें आपको ट्रिक ये होती है कि आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ता है. मेनी टाइम्स यू गेट द आंसर विदाउट सॉल्विंग द होल क्वेश्चन. सो यू हैव टू चेक दीस टॉपिक्स. तो ये 6 टॉपिक्स अपना आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो. आप इन 6 टॉपिक से मास्टर करना ही करना है, बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस के साथ. मतलब कोई भी वैरायटी छूटे ना. ऐसा ना हो कि सैलोजिज्म में आपने कुछ पॉसिबिलिटी वाले केसेस छोड़ दिए और आप खुश हो रहे हो कि आपको आता है सब कुछ. ऐसा मत करो. जितना टफ से टफ पढ़ सकते हो करो, बट ये 6 टॉपिक्स आपने कर ली तो सीधे बता रहा हूँ आपका 30 मार्क्स 10 मिनट्स में आ जाएगा. फिर आपका बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर. ठीक है, सिद्ध बता रहा हूँ. एंड JBIMS जो जाता है उसका ये स्ट्रॉन्ग पार्ट होता ही है, वो डाउट ही नहीं इसमें. तो मैंने आपको बताया था गाइस, JBIMS जिस बंदे का 99.99 आया था, ही अटेम्प्टेड 1 पजल आउट ऑफ 6. उसने 1 पजल अटेम्प्ट किया 6 में से, स्टिल ही स्कोर्ड 11th रैंक, 99.99 परसेंटाइल. तो आप लोग ये मत सोचो कि पजल नहीं करोगे तो आपका नहीं आएगा. ठीक है, मतलब पजल करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एक ही पजल करो, बट हैवी पजल प्लीज मत करो. अभी भी लोग को देख रहा हूँ मैं. अभी देखो, आप अगर हैवी पजल सॉल्व कर भी रहे तो उसका फायदा है क्या, बताओ. आप अगर अभी यहाँ पे कर भी लोगे, घर में आपका हो भी है आधे घंटे में सॉल्व, 1 घंटे में, तो वहां जाकर करोगे क्या? वहां 40 मिनट से आप पजल सॉल्व करोगे, तो बेटर है पजल क्यों करना सॉल्व. जब आपको वहां करना ही नहीं पजल पड़ा, तो आप इंडिपेंडेंट चीज में ध्यान दो ना. क्रिटिकल रीजनिंग में ध्यान दो भाई.
क्रिटिकल रीजनिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, आपको पता है 15-16 क्वेश्चन आते हैं इसके। देन व्हाई आई डोंट नो पीपल आर वेस्टिंग। यहाँ पे गाइस कोई फायदा नहीं है, आपने अगर कर भी लिया सॉल्व, आपको यहाँ टाइमर चल नहीं रहा है, आप कर रहे हो, आपका आंसर निकल रहा है, बट 40 मिनट में आंसर आ रहा है, मतलब नहीं ना इसका। आप 2.5 घंटे में आप 40 मिनट नहीं दोगे पजल में, सो इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम दोज हु आर सॉल्विंग पजल्स राइट नाउ। ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी नहीं है अगर आप बड़े बड़े पजल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा पजल करो, हैवी पजल क्या कर रहा हूँ, बहुत ही बड़े जो आते हैं। जो छोटे मोटे पजल आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि छोटे कुछ पजल तो करने ही पड़ेंगे आपको, बट बड़े बड़े पजल्स प्लीज मत करो। उससे अच्छा आप इंडिपेंडेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, फोकस ऑन वीआरसी। वीआरसी लोग का नहीं आता है, एंड सबसे ज्यादा लीस्ट टाइम टेकिंग होता है वीआरसी, ठीक है। वर्बल में जो वैरायटी क्वेश्चंस होते हैं वो देखो, उसमें ज्यादा ध्यान दो। आप लोग अभी भी रॉन्ग ट्रैक पे काफी लोग हैं, ठीक है। खुशी होती है अंदर से, बड़े बड़े पजल हो जाते हैं, पर कोई मतलब नहीं इसका, कोई सेंस नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट दैट पजल, ठीक है। और कर रहे हो तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप ट्रैप हो गए हो फिर, अगर आप पजल कर रहे हो अटेम्प्ट, ठीक है। अनलेस आप बहुत ही ज्यादा तेज हो पजल में, एक्सपर्ट तो बात अलग है, बहुत ही कम होते हैं जो हैवी पजल करेंगे वहां पे, और करते हैं तो ट्रैप हो जाते हैं वो। मैंने देखा है लोगों को, लोग एलआर में करते हैं पजल, एलआर में आ रहा है 72 पॉइंट्स में आ रहा है 5 नंबर, क्या मतलब वो इसका, ऐसे पीएचडी करने का, बैलेंस तो बनाओ, ठीक है। चलें, तो गैस ये है हमारा, चलते फिर आगे गैस। तो बेसिकली हमारा ये मेन टॉपिक हो गए, ठीक है। और बेसिकली इसको अच्छे से कर लो गैस, इसको एक्सपर्ट बन जाओ, इसमें आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, शेयर करो वीडियो को। बाकी गैस दोस्त लुकिंग फॉर सीईटी क्रैश कोर्स, हम लोगों ने क्रैश कोर्स में एड ऑन किया हुआ है 6 लाइव जूम सेशंस वी आर प्लानिंग ऑन वीआरसी एंड एलआर मिला के, ठीक है। अभी तक हमारा क्या था, जो आपको डिटेल्स दिख रही है, फुल एंड मॉक, शॉर्टकट वीडियोस, यूनिक कंसेप्ट वीडियोस, ठीक है, थ्योरी एंड नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स और 50 टॉपिक टेस्ट। बट हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग 6 लाइव जूम सेशंस करेंगे 28 जुलाई से जो स्टार्ट होंगे। उसमें आपके 5 सेशन होंगे वीआरसी में, बिकॉज वीआरसी में काफी लोगों को नहीं आ रहा है अभी, काफी लोगों को वैरायटी पता नहीं चल पा रही है कि इनकरेक्ट यूसेज के क्वेश्चन कैसे आते हैं, और बहुत नई नई वैरायटी क्वेश्चन आए थे। सो वी आर प्लानिंग कि हम लोग 5 वीआरसी सेशन करेंगे, एक सेशन करेंगे अलार्म में सैलोजिज्म का। ये गाइस 6 जूम सेशन जो हैं, ये सब लोग इसमें एलिजिबल हैं जो लोग या तो क्रैश कोर्स ले चुके हैं हम लोगों का, या लेने वाले हैं, या फिर एमबीए सीटी का हम लोग के मॉक्स। अगर आप मॉक भी ले रहे हो हम लोगों का 799 का 12 मॉक्स, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो, बिकॉज यू विल गेट एडेड टू आवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है। और अगर क्रैश कोर्स है तभी आप एलिजिबल हो। क्रैश कोर्स आपको हाईली इकोनॉमिकल पड़ेगा, ठीक है। अभी भी गाइस टाइम है सीटी में, मुझे लग रहा है सीटी अगस्त एंड से पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चांस है, और आप अगर आप ढंग से यूटिलाइज करें तो आपके लिए बहुत फायदा करने वाला है। तो ये 6 जूम सेशन आपको काफी हेल्प करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको हाफ हाफ करते हैं, 3 वर्बल करते हैं, 3 एलआर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बट 6 जूम सेशन तो हमने ऐड कर दिए, लाइव सेशन हैं 1-1 घंटे के, जो आपको बाकी बहुत हेल्प करने वाले हैं एलआर एंड वीआरसी में। क्वांट्स के हम लोग ऑलरेडी वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पे, शॉर्टकट्स वाले तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। मेनली यहाँ पे दो को दिक्कत आती है वीआरसी में, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइस। अगर आप रेलेवेंट मॉक देख रहे हो तो आप हम लोग के मॉक्स देख सकते हो, अभी तक हमने काफी टफ मॉक लगा लिए होंगे, बट आप रेलेवेंट मॉक देखो जहाँ पे आपका कुछ स्कोर आए, आपको लगे यार कि कुछ हम अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज आप भी थक गए होगे 105 110 ला के, अब टाइम आ चुका कि 125 130 डाले का, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारे मॉक हम लोग के ईजी हैं, ईजी नहीं है, ठीक है। मॉक हम लोग के मॉडरेट और एडवांस लेवल पे, बट ये कि क्लोजेस्ट है, बात ईजी की नहीं है, बात क्लोजेस्ट की है। आप देख सकते हो कुछ कुछ मॉक्स का कट ऑफ 136 भी किया है, कुछ का 127 भी किया हुआ है, ठीक है। देयर आर 7 एडवांस मॉक एंड 5 मॉडरेट मॉक। क्लोजेस्ट क्यों है, बिकॉज रेलेवेंट पैटर्न है, पैटर्न चेंज नहीं है, जो सीडी में आता है वही पैटर्न है। ऐसा नहीं कि हमने कुछ आपको गेम्स एंड टूर्नामेंट्स सेट दे दिए, ऐसा कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। दीज आर द वन ऑफ द क्लोजेस्ट मॉक। एक पोल हुआ था, मुझे फॉरवर्ड आया था उसका किसी टेलीग्राम ग्रुप में, वहां पे 67% लोगों को लगता है कि हम लोग के जो मॉक्स हैं वो रेलेवेंट टू सीटी है, क्लोजेस्ट टू सीटी है, ठीक है। तो ये चीज है, बाकी सीमैट का ये रिजल्ट आप देख सकते हो, ठीक है। और ये आप रिव्यूज देख सकते हो आप सीटी के मॉक्स के, आपको आइडिया लग जाएगा। चलो गाइस, दिस वाज आवर वीडियो, यू कैन विजिट mockzone.in/ct, यहाँ जा सकते हो, आपको सीटी के मॉक्स एंड कोर्सेज मिल जाएंगे। और ज्यादा लेट मत करो, स्टार्ट करो गाइस पढ़ना, आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज और, जिन लोगों ने हम लोग को सीटी का क्रैश कोर्स है मॉक्स लिया है और व्हाट्सएप में पिंग नहीं किया, प्लीज पिंग कर दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है ना, आपका लॉस होगा। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।